My dear students, welcome you. In this video, we learn how to change a conditional sentence into other conditional sentence. Conditional sentences are two kinds. Number one, conditional sentence. Number two, concessive sentence. First, we should know what is a conditional sentence. According to Randolph Quirk, grammarian of England, conditional sentences are consisting of main clause and the adverbial clause. Or a condition clause states the dependence of one circumstance or set of circumstances on another. What is a concessive clause? Concessive clauses imply a contrast in the dependent clause. That is, the main clause is surprising. In this way, it is clear that in concessive clause there is contrast between two clauses, the principal clause and adverbial clause. And in a conditional sentence there is no contrast. The principal clause and the subordinate clause is dependent to each other. So now there are the words of condition: if, whether, although, suppose, supposing, in case of, provided for, unless, until, etc. With the help of these words, we change the condition of the sentence. For example, if you work hard, you will pass. Suppose you work hard. Suppose you work hard, you will pass. If you go to him, he will help you. In case of going to him, he will help. In this way, we can easily change. Now, in Hindi, बच्चों, interchange of condition means शर्त. कंडीशनल सेंटेंस के बारे में इंग्लैंड के ग्रामरियन व्याकरणाचार्य, जिनका नाम है रैंडॉल्फ क्विर्क, इन्होंने बताया है कि कंडीशनल सेंटेंसेस आर कंसिस्टिंग ऑफ द मेन क्लॉज एंड द एडवर्बियल क्लॉज. और एडवर्बियल क्लॉज के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत जब मैंने आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज पढ़ाया था, तो एडवर्ब क्लॉज के क्या क्या कंजंक्शंस हैं उनको मैंने पढ़ाया था. वहां पर उनका डीप स्टडी कर लें. उसके बाद उन्होंने कहा कि a condition clause states the dependence of one circumstances
or set of circumstances on another. ये कंडीशनल सेंटेंस की पहचान है। फिर उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस में ही जब हम इसके दो भाग कर देते हैं तो एक कंडीशनल सेंटेंस अर्थात एडवर्बियल क्लॉज से रिलेटेड होता और दूसरा कंसेसिव क्लॉजेस होती है। कंसेसिव क्लॉजेस imply a contrast in the dependent clause, that is the main clause is surprising. कंसेसिव क्लॉजेस में ये नया शब्द है आपके लिए, वहां पर मैंने इसका भेद नहीं किया था जब सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज पढ़ाया था। यहां पर अभी मैं उदाहरण के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। अब कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए हम कुछ शब्द हैं जैसे वर्ड्स ऑफ कंडीशन, इफ, वेदर, ऑल्दो, सपोज, सपोजिंग, इन केस ऑफ, प्रोवाइडेड फॉर, अनलेस, अनटिल, ईटीसी। इनको आपस में भाव के अनुसार हम इंटरचेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि आप यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो जो यहां पर आया है कि कंसिस्टिंग ऑफ मेन क्लॉज एंड द एडवर्बियल क्लॉज, यहां पर कंसिस्टिंग ऑफ मेन क्लॉज एंड एडवर्बियल क्लॉज, दिस इज बाय सपोजिंग यू वर्क हार्ड। मान लो आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप पास हो जाए। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ यू गो टू हिम ही विल हेल्प यू। यदि आप उसके पास जाते हैं तो वह मदद करेगा। इन केस ऑफ गोइंग टू हिम ही विल हेल्प यू। हम इसे सपोज से भी बना सकते हैं। सपोज यू गो टू हिम ही विल हेल्प यू। अब सेज नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में, सपोजिंग दे अराइव वी शैल वेलकम देम। नाउ इफ दे अराइव वी शैल वेलकम देम। अनलेस वी वर्क हार्ड वी शैल नॉट गेट गुड मार्क्स। In case of not working hard, we shall not get good marks. If you treat him kindly, he will not disobey you. Suppose you treat him kindly, he will not disobey you. Although John worked hard, he did not pass. This is a concessive clause. In concessive clause, there is a contrast. In both sentences there is contrast. Although John worked hard, he did not pass. Provided John worked hard, he did not pass. In case I am right, you must be wrong. Provided that I am right, you must be wrong. Unless you work hard, you will not pass. If you do not work hard, you will not pass. In this way, we can change the condition of the sentence. Now in Hindi, बच्चों तीसरे वाक्य में सपोजिंग दे अराइव वी शैल वेलकम देम, तो इसका कंडीशन इफ से चेंज करेंगे। इफ दे अराइव वी शैल वेलकम देम, सपोजिंग के स्थान पर इफ का प्रयोग किया। उसके पश्चात अनलेस वी वर्क हार्ड वी शैल नॉट गेट गुड मार्क्स। जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करते हैं पास अच्छे अंक प्राप्त नहीं करेंगे। इन केस ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम न करने के कारण से वी शैल नॉट गेट गुड मार्क्स, हम अच्छे अंक प्राप्त नहीं करेंगे। इफ यू ट्रीट हिम काइंडली, यदि आप उसके साथ नम्रता का व्यवहार करते हैं, ही विल नॉट डिसओबे यू, वह आपकी अवज्ञा नहीं करेगा। सपोज यू ट्रीट हिम काइंडली, मान लो आप उससे नम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं तो ही विल नॉट डिसओबे यू, वो आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं करेगा। ऑल्दो जॉन वर्कड हार्ड ही डिड नॉट पास, ये कंसेसिव सेंटेंस है जिसमें कंट्रास्ट है। एक तरफ कठिन परिश्रम किया और दूसरी तरफ पास भी नहीं हुआ, ये कंट्रास्ट है, इसलिए कंसेसिव सेंटेंस है। प्रोवाइडेड जॉन वर्कड हार्ड ही डिड नॉट पास, ये शर्त, प्रोवाइडेड मीन्स शर्त के अनुसार, क्या शर्त? जॉन वर्कड हार्ड ही डिड नॉट पास। शर्त
लगा करके, इन केस आई एम राइट यू मस्ट बी रॉन्ग, प्रोवाइडेड दैट आई एम राइट यू मस्ट बी रॉन्ग, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं आप पास नहीं होंगे। इफ यू डू नॉट, बच्चों ये अनलेस जो सेंटेंस होता है, अनलेस और अनटिल से जो वाक्य आरंभ होता है वो निगेटिव होता है, इसीलिए जब इफ कंडीशन लगा दी तो यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करना पड़ा। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। इस प्रकार से बच्चों आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी टॉपिक थे, जितने भी रूल्स थे, वो सभी मैंने आपको समझा दिया। इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन की कुल 12 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई हैं। आशा करता हूं कि आप क्रम से एक मेरी आपको आई एडवाइस यू टू मेक द डीप स्टडी ऑफ ऑल वीडियोस इन द सीरियल वे। यदि आप सीरियल से सभी 12 वीडियोस का डीप अध्ययन करते हैं तो चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे 12th का एग्जाम हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। मैं आपको सलाह देता हूं कि जिस प्रकार से मैंने प्रीपोजिशन की कई एक वीडियोस दी हैं, सिंथेसिस की दी है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की दी है, जब भी आप अध्ययन करें तो सीरियल से अध्ययन करें और लास्ट तक करते जाएं। अगर आप 4 वीडियोस का अध्ययन कर लिया है तो 4 का ध्यान रखते हुए आप 5वें को स्टार्ट करें और तभी आपको विधिवत समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।